doubt, you can just ask during the you can say solving of the numerical. You can just ask, don't keep any reservations. So what happens, कहाँ से क्या value आई, कैसे आई, है ना? You don't understand, what will happen is you will miss some things, right? So this numerical which we are going to discuss today is known as cash flow statement. The other day we had solved. Some of you are messaging me. Please let me in the meeting. Look, if you join through official ID, na, I need not do anything because when I'm switching off to the present screen mode, na, I am not able to see what is happening in the backdrop. ये मीटिंग में क्या चल रहा है ना, जो स्क्रीन मुझे दिख रही है वही स्क्रीन आपको दिख रही है बाद में. वॉट एवर यू सी दैट इज विजिबल टू मी. अभी देखो मुझे ये सब दिख रहा है ना, लेकिन जब एज सुन एज आई मूव टू प्रेजेंटेशन मोड, जब मैं ये देख रहा तो मुझे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है. हु इज देयर इन द मीटिंग, हु इज नॉट देयर इन द मीटिंग. That's why I request all of you to join through official ID only. So I need not permit you. उसमें मैंने फिर भी what I have done is I have allowed there is one extension which is auto allowing the meet, but still there is some problem in that extension. वो कभी कभी work नहीं करता. Not even some of you may be waiting and they may not be allowed. So if you join through official ID, there is no there won't be any problem as such. Fine. Official ID है आपको, सब पासवर्ड वगैरह है आपके पास. You always join through official ID only, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा फॉर अलाउिंग और, है ना, वो सब. बिकॉज मुझे बाद में वंस आई स्विच टू द टीचिंग मोड, आई एम नॉट एबल टू सी व्हाट इज हैपनिंग ना. तो दैट कैन यू टेक नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स. What we'll do is we'll just go through the numerical, then we'll solve in the. Now this numerical is quite big, I cannot solve on my board. तो इसके जो रोज कॉलम्स है अराउंड 9 कॉलम आते हैं, 9 से 10 कॉलम आते हैं, रो वाइज भी काफी बड़ा हो जाता है. So what I'll do is I'll try to solve in the Excel. ठीक है. So carefully listen. All of you are on the same page. All of you are able to see this page. ये दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट मेरा मैं एक्सेल चल नहीं रहा है तो. ओके. हाँ, सो जस्ट देखो ये क्वेश्चन, दिस इज क्वाइट. हर एग्जाम में अभी तक जितने भी एग्जाम हुआ है, हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया ही आया है. ये क्वेश्चन इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर्स एंड इट कम्स 100% आता है. वैल्यूज चेंज होगी, वैल्यूज आप बोलोगे वैल्यूज भी सेम रहेगी, ऐसा नहीं है. वैल्यूज चेंज, एवरी एग्जाम में कुछ नए नए वैल्यूज वो देंगे. ठीक है. जस्ट सी, a contractor has to take a decision whether to bid or not to bid, है ना. बिड करना है या नहीं करना है फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. ठीक है. द डिसीजन क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन एनपीवी. तो एनपीवी इज अगेन बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी. व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? एनीवन कैन टेल मी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? हाँ जय बोलो. टाइम वैल्यू ऑफ मनी. एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? Yes, sir. हाँ बोलो ना. Yes, sir. उम्मीद, Yes, या sir. उम्मीद. Yes, sir. Audible. उम्मीद, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? No, no, sir. I know. I don't know. किसी को नहीं मालूम? In the other day I had given example na, if Umair gives 100 rupees to Jay,
फाइन। और जय 5 साल बाद अगर 100 रुपीज रिटर्न करता है तो वेदर जय विल, उमेद विल एक्सेप्ट। दिस एग्जांपल आई गिवन ना, No, no, sir. he will not accept. Of course Umaid might accept Jay's because they are friends, that is a different thing, but general, in general terms na, if any person, if he gives 100 rupees today and 5 years back or 10 years afterwards, after 10 years, if the same amount is returned, the person may not accept. Why? Because the purchasing power of money today is more than the purchasing power of money tomorrow, isn't it? तो 100 रुपए में जो चीज आप आज खरीद सकते हो, 100 रुपए में वो सेम चीज आप बाद में नहीं खरीद सकते हो। तो दैट इज नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड इट इज मोर सो डोमिनेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। इफ यू सी यूएस वगैरह में जाओ तो वहां पे डॉलर के इसमें इतना फ्लक्चुएशन नहीं है। डॉलर का जो पावर था, है ना, इट हैज रिमेन मोर और लेस सेम, है ना। जो पहले जो चीजें डॉलर, थोड़ा बहुत, थोड़ा इन्फ्लेशन एंड इसकी वजह से थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा, isn't it? But if you talk about developing countries like India, where if you see the, if you compare the dollar value and the uh, uh, money value, so over a period of time if you observe, आपको ऐसे फिजिक मतलब इसमें दिखेगा नहीं, इसमें तो डे टू डे ट्रांजेक्शन में आपको दिखेगा कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, दैट विल बी देयर। बट डॉलर के वैल्यू, इफ यू सी ओवर से 50 years 60 years और इवन से 10 years, लाइन हम व्हेन आई वाज डूइंग my AME ना, मेरा AME आई वाज ड्यूरिंग 2009 टू 2011 व्हेन आई वाज डूइंग माय AME, उस टाइम डॉलर का भाव अराउंड 40 to 45 रुपीज था, है ना। टुडे इफ यू सी द वैल्यू ऑफ डॉलर इज अराउंड 70 to 75 के बीच में समथिंग है। तो ऑलमोस्ट इट हैज डबल्ड इन 10 years। So these factors are there, है ना। A normal course of time, if you just observe in the normal 1 or 2 years, you may not find that much appreciation. But over a period of time, 10 years, 15 years, or 50 60 साल में, it is said that during independence, the dollar value and rupee value was more or less same. 1 rupee was equivalent to more or less $1. But over a period of time, it has drastically increased. Just a moment, I have a call. हाँ, yes. So time value of money na, time value of money means the purchasing power of money today is lot more than purchasing power of money tomorrow. So based on that ना, based on that you need to decide। अगर देखो इसमें इसलिए ना, when we'll study the this numerical is just not that much to into the time value, it has just one calculation on that। but generally जब हम construction projects में bid करते हैं ना, तो I have told you this example also ना, bird in hand is better than two in the nest। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, एंड दैट प्रोजेक्ट इज गिविंग यू रिटर्न्स विच आर नॉट दैट मच, है ना, आपको कुछ 2 से 3 साल में कुछ प्रॉफिट कमा के दे रहा है वो प्रोजेक्ट। फिर एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है बट इट विल रिक्वायर से 10 years और 8 years और मोर देन 5 years। तो उस टाइम पे दैट प्रॉफिट फिजिकली आपको अभी ज्यादा दिखेगा, but when you apply the discounting factors to that, है ना, there are some discounting rates which need to be applied। so when you apply those discounting factors, that money, that net worth, है ना, net present value बोलते हैं उसको, NPV, है ना। so that net present value is far less than the project which will be giving you profit in 2 years। although that physical profit आपको देखेगा, इसमें तो मुझे 2 ही लाख मिल रहे हैं या 3 लाख मिल रहे हैं, इसमें मुझे 10 लाख मिल रहे हैं, तो 10 लाख 10 साल बाद मिल रहे हैं।
और वो भी मिलेंगी नहीं मिलेंगी इसकी एश्योरिटी नहीं, बिकॉज 10 साल बाद किसने क्या देखा है ना, लॉट ऑफ चेंजेस में भी देयर। जैसे पेंडेमिक आ गया, नोबडी एक्सपेक्टेड दैट, एंड many many businesses have become totally disrupted due to this pandemic. So NPV is a measurement criteria. based on NPV बोला है, net present value. So again there are two methods of appraising a project. Project appraisal जब हम बात करते हैं, listen carefully, project appraisal जब हम whenever we discuss about project appraisal, so there are basically two methods of project appraisal. One is what? Conventional methods. Conventional methods में क्या होता है? Just based on the values, irrespective of computing or accounting for the time value of money, you appraise the project. Generally, it is done for short duration projects of say 2 or 3 years. Beyond 3 years, अगर आपका project जाता है तो you have to compulsorily go for time value of money. Otherwise, you would be arriving at wrong decisions. Finance decisions जब आप लेते हैं, so if you don't account for time value of money, you would be arriving at wrong decisions, because what? आपने because your purchasing power of money is not, है ना, it has diminished over the years, fine. So always remember, जब भी 2 से 3 साल के ऊपर जब प्रोजेक्ट जाता है, you should always work on मॉडर्न टूल्स, है ना। ये जो कन्वेंशनल टूल्स है जिसमें जस्ट, है ना, कन्वेंशनल में क्या है, पे बैक पीरियड है, कितने साल में पैसा वापस आ रहा है, इधर ARR मेथड है, तो ये सारे मेथड हम देखेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बट इस प्रोजेक्ट के लिए द एनपीवी शुड बी यूज्ड, सो व्हाट एनपीवी इज एंड हाउ इट हैज टू बी अप्लाइड, दैट विल डिस्कस, है ना। तो उसका एक एक्सेल भी है मेरे पास, दैट एक्सेल आल्सो आई विल शो यू, सो इट विल बिकम मोर, सारे एक्सेल फॉर्मेट्स आई विल शेयर विद यू वंस यू आर, है ना, बिकॉज अभी आपको शेयर करूंगा तो आपको समझेगा नहीं सारी चीज, है ना। वंस वी go through some numericals, so I'll share the Excel sheets with you, so you'll be more, है ना, you will be able to more, relate the formulas and all properly after that. So the decision is based on NPV, net present value. What आज के दौर में NPV देखो decision criteria है, so again I'll tell you, NP देखो, there are four methods, basically there are four methods और 5 methods, है ना। मेन क्लास दो है, मेन दो मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स है और ट्रेडिशनल मेथड्स है। तो ट्रेडिशनल में दो आते हैं, ट्रेडिशनल में पे बैक पीरियड आता है एंड ARR आता है, दैट आई विल डिस्कस व्हेन विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट, है ना, दैट इज अ डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट मॉड्यूल। बट एनपीवी में ट्रेडिशनल में दो आते हैं, पे बैक पीरियड एंड ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दोज आर टू मेथड्स व्हिच आर देयर इन ट्रेडिशनल मेथड्स। वेयर मॉडर्न अकाउंटिंग मेथड्स में तीन मेथड्स है, वन इज एनपीवी, one is IRR, internal rate of return, and one is BC ratio, benefit cost ratio method. तो ये तीन मेथड्स है, NPV, IRR and BC ratio method. So NPV should be positive, है ना, BC ratio should be more than one. That all we'll discuss in whenever we'll discuss that those kind of numericals. But अभी के लिए याद रखो NPV हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सो द प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो एग्जाम में ये चीज चेंज हो जाएगी, 5000 crores बोला है इधर, तो अगेन डिपेंडिंग ऑन दी type of project ना, this value may change, 5000 crores में it will be a very मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, कोई रोड होगा, हाईवे होगा, बिटवीन टू मेट्रो सिटीज और एक्सप्रेस भी होगा, जो भी होगा, तो इट इज अ बिग अमाउंट, 5000 crores इज अ क्वाइट अ बिग अमाउंट टू बी कंप्लीटेड इन 5 years। तो ये प्रोजेक्ट है 5 years में, तो यू हैव टू गो फॉर मॉडर्न मेथड्स ओनली, ठीक है। तो एनपीवी से आपको उसको अप्रेस करना है। Based on the tender conditions and the company policy, the following information is generated. So carefully listen the information. The first information क्या है? Mobilization advance 6% of project work. Now what is mobilization advance? Is anyone? It is advance given for starting of the work. नहीं नहीं, advance given for starting of the work is okay. Uh, To Before, mobilize the machineries and हाँ, यस यस यस, टू मोबाइल, इसका नाम ही है ना मोबिलाइज। तो साइट मोबिलाइजेशन जो हम करते हैं ना, मोबिलाइज द मशीनरीज, ब्रिंग द लेबर्स टू द साइट, लेबर का कैंप करना, फिर अप्रोच रोड्स बनाना ना, मोबिलाइजेशन आपने पढ़े होंगे, साइट लेआउट मार्किंग करना, ऑल दीज थिंग्स ना, द बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स, बिफोर द एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट्स ना, you need to mobilize the site, you need to make the site ready for work,
तो उसमें उसके लिए आप लेबर कैंप्स एस्टेब्लिश करोगे, टेम्पररी रोड्स एस्टेब्लिश करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लोगे फ्रॉम एमएससीबी, है ना. तो इट विल रिक्वायर सम amount of money. Even if your site is big, even schooling facilities will be need to be provided, temporary schooling facilities. बिकॉज लोग आपके जो साइट पे जो लेबर्स होंगे उनके बच्चे होंगे, स्पेशली फीमेल लेबर्स आर इन ह्यूज नंबर जनरली इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ना. हमारे कंस्ट्रक्शन इसमें सेक्टर में फीमेल लेबर्स आर क्वाइट मेजर, यू कैन से मेजर कंपोनेंट ऑफ द टोटल लेबर. उनके अगर बिग कंस्ट्रक्शन साइट इज देयर तो उनके बच्चे बच्चे होंगे तो उनके लिए फॉर देयर सेफ्टी मेजर्स, है ना. एंड यू कैन नॉट, you have to provide say separate we can say residential facilities, temporary residential facilities, temporary hutments for them, and water supply, उनका electricity, वो सब आपको प्लान करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट प्लानिंग पर्पज यू रिक्वायर फंड्स. तो मोबिलाइजेशन एडवांस कितना, 6% ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, बिकॉज योर प्रोजेक्ट में भी नाउ बेस्ड ऑन दिस कॉस्ट व्हाट इज अंडरस्टूड दैट द प्रोजेक्ट इज नॉट अ लोकलाइज्ड प्रोजेक्ट, इट इज अ, है ना, एक फैला हुआ प्रोजेक्ट रहेगा. तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा साइट को. तो 6% इन 5,000 करोड़ में से 6% विल बी अराउंड 30 करोड़, है ना. अराउंड 30 करोड़ विल बी रिक्वायर्ड फॉर मोबिलाइजिंग द साइट. फाइन. सो दिस मनी, ये जो मोबिलाइजेशन एडवांस है, दिस मनी विल बी गिवन बाय द क्लाइंट टू द कॉन्ट्रैक्टर टू स्टार्ट द साइट. और ये पैसा वापस देना है इसको. इट इज नॉट अकाउंटेड इन द बिल्स. ये पैसा क्या है, तो बोलते हैं ना, फॉर जस्ट स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट दिस मनी विल बी गिवन बाय द क्लाइंट टू द कॉन्ट्रैक्टर. The client contractor will use this money for mobilizing, and after his project, है ना. देखो पहले पहले साल में इनफ्लो में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट वी आर प्लेइंग, व्हाट वी आर creating today is we are creating two sheets. One is cash inflow sheet, cash inflow statement, cash outflow statement. So mobilization advance will be there. It will be accounted as inflow in the first year, है ना, और 0th ईयर या फर्स्ट ईयर बोल दो उसको. फर्स्ट ईयर में इसको आप इनफ्लो में आएगा, एंड इसको कॉन्ट्रैक्टर को रिटर्न करना है टू द क्लाइंट अगेन व्हेन इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट. जो भी है 3 इक्वल इन 6% का 2% विल बी वन इंस्टॉलमेंट ना, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट अगर में. तो 2% इन फर्स्ट ईयर, 2% इन सेकेंड ईयर, 2% इन थर्ड ईयर. तो इसको रिटर्न करना है. तो इनफ्लो में 6% आएगा फर्स्ट ईयर में, एंड आउटफ्लो में 2% जाएगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में. तो केयरफुली यू नीड टू मेक दिस, है ना. उसका एंट्रीज आपको बराबर बताना है. इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इज वेरी सिंपल, ओनली थिंग इट नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. देन सेकंड इज सीई एडवांस. सीई मींस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एडवांस. तो नेम इटसेल्फ सेज दैट इट इज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, है ना. इक्विपमेंट साइट पे आ रहे हैं. तो इन मशीनरी एंड ऑल व्हिच विल बी रिक्वायर्ड, ह्यूज क्रेन्स, है ना. तो दे विल बी वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट्स. तो इट इज 10% ऑफ द प्रोजेक्ट वोट, यानी 500 करोड़ का, 5,000 करोड़ का 10% कितना हो गया, 500 करोड़. 500 500 करोड़, हाँ. दिस इज ऑल्सो दिस इज नॉट 330 करोड़, 300 करोड़, 300 6%. यस सर 300 करोड़. तो 30% 10% of that means almost 500 crores will be spent on, or it will be given to the contractor as a equipment advance, and this will be deducted in 2 equal installments starting from the second year. तो इसका फर्स्ट ईयर में कुछ वापस नहीं करना है उसको, बट सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, है ना. 2 equal installments starting from the second year, the second year and third year. तो सेकेंड ईयर 5%, थर्ड ईयर 5% रिटर्न करना. फाइन. Then what next? Material component. Material component, again this component will vary. ये सारे फिगर जो अभी आपको इधर दिख रहे हैं, these are based on the project, based on the tender conditions. तो आपको जो एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, it will not be same है. तो ये केयरफुली आप देखो, क्योंकि दिस some projects में require mobilization to be more, some में require equipment advance to be more, है ना. कोई कोई प्रोजेक्ट्स में इक्विपमेंट्स विल नॉट बी दैट मेजर, है ना. जो नॉर्मल अपना हाउसिंग एंड ऑल दिस प्रोजेक्ट्स है, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्टर इज एक्सपेक्टेड टू हैव दिस इक्विपमेंट्स, है ना. तो मोबिलाइजेशन में भी मोर एंड सी में भी लेस. मटेरियल कंपोनेंट में आल्सो वेरी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, है ना. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जनरली मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड इन ह्यूज क्वांटिटी. तो मटेरियल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 50%, यानी ये 500 करोड़ में से
50% is the material component. Generally it is 40 to 50%. Generally material component कोई भी project में it ranges between 40 to 50%. It may be less, it may be more than 50% also, depending on the type of the product. But general जो range है that I'm telling you is 40 to 50%. कोई भी project लो आप, civil engineering project, any construction project का material component will be 40 to 50%. Now remember, secured advance is always given against the material. So secured advance given against the material brought to site is 60% of the material cost. तो ये पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया जाएगा. 500 करोड़ में से जो 250 करोड़ 2500 करोड़ है, 5000 में 2500 करोड़ में से 60% जो पैसा आ रहा है मटेरियल का, वो एडवांस दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को. तो सिक्योर्ड एडवांस इज अकाउंटेड इन प्रोपोर्शन टू द ईयरली बिल्स पेबल टू द कॉन्ट्रैक्टर. अभी देखो, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अबाउट टू. मटेरियल कंपोनेंट इज 50%, बट मटेरियल कंपोनेंट पूरा का पूरा स्टार्ट में नहीं दिया जाता है. जैसे मोबिलाइजेशन आपको स्टार्ट में लगेगा ना, to mobilize the site, the money will be given in the start only, because unless you mobilize the site, the construction cannot be started. तो ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर को पहले लगेगा ही, अदरवाइज वो बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है ना. ऑल्दो उसके पास पैसा होता है, लेकिन वो अपना पैसा क्यों उसमें यूटिलाइज करे, है ना. तो ऑल दिस मनी, बिकॉज व्हाट हैपेंस इफ सम प्रॉब्लम इज देयर इन द फ्यूचर, क्लाइंट कुछ प्रॉब्लम आता है, तो कॉन्ट्रैक्टर का लॉस नहीं होना चाहिए. इसलिए टेंडर में, कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर प्रोविजंस आर देयर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ, ऑफ द क्लाइंट आल्सो एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर आल्सो. दोनों का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए सारे एडवांसेस दिए जाते हैं. तो ऐसा नहीं हो कि contractor cannot claim also कि I have not got advance, so I have not started the site and hence the delay in the project. And client can also not claim कि client का भी फिर responsibility बढ़ जाता है. तो both parties are in that way safeguarded. So mobilization advance is 6% of the project work. हाँ, ये सारा तो पहले देना, बट इवन equipments भी ना, equipments भी at the start of the project देना is advisable. Otherwise what happens ना, if you do not give at the start of the project, what happens is the project suffers, because contractor के पास पैसा नहीं होता, वो बोले मेरे पास पैसा नहीं इसलिए I have not started the work, and then delays and then arbitration, litigation, ये सारा फिर आ जाता है. But again it is a loss to both. जो भी है, अगर litigation अगर आता है तो दोनों के लिए लॉस है, कॉन्ट्रैक्टर का भी लॉस है, क्लाइंट का भी लॉस है. इसलिए if both parties are they are working, you can say happily, if both are working, then it is always good. ठीक है. तो मटेरियल कंपोनेंट भले 50% है, बट विल नॉट बी गिवन इन द स्टार्ट. it will be accounted it will be accounted in proportion to the yearly bill. It will be accounted in proportion to the yearly bill. ये दिख रहा है बराबर. It will be accounted in proportion to the yearly bill payable to the contractor. Secured advance will be deducted in 3 equal installments from the running bill starting from the second year. तो अगेन ये भले ही फर्स्ट ईयर से दिया जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में पूरा नहीं दिया जाएगा. फर्स्ट ईयर में कितना मटेरियल आ रहा है, सेकेंड ईयर में कितना मटेरियल आ रहा है. अभी कितना मटेरियल आ रहा है कैसे पता चलेगा? बेस्ड ऑन द ईयरली बिल्स. कॉन्ट्रैक्टर को जो ईयरली बिल दिया जा रहा है उसका 50% मटेरियल है, उसमें से बेस्ड ऑन दैट प्रोपोर्शन एंड ऑल दैट वी नीड टू कंप्यूट. फाइन. तो अगेन दिस विल बी डिडक्टेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रहा है. तो लेने पैसा जब वापस करना है कॉन्ट्रैक्टर को, तो इट विल नॉट बी डिडक्टेड इन ईयरली अकॉर्डिंग टू ईयर, वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा. तो सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में लिया जाएगा. ठीक है. फाइन. contractor has to pay, will what will do ना, will make this third year so that client has sufficient time, contractor has sufficient time, otherwise थर्ड ईयर कर लेते हैं. ठीक है. इधर बिकॉज इधर सेकेंड ईयर से ये चालू हो रहा है, तो पूरा उसका फाइनेंसेस ब्लॉक हो जाएगा. तो इधर हम थर्ड ईयर कर लेते हैं, तो इट विल बी, ही विल बी इन अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन. ठीक है. कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे 3% as performance security. The other day we had discussed what is performance security. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मतलब वो भागेगा नहीं साइड से, है ना. सम पीपल कॉल दिस एज सिक्योर्ड, दिस एज सिक्योरिटी डिपॉजिट आल्सो. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो कितना है वो 3% सिक्योरिटी देना है उसको,
यानी 5,000 करोड़ का 3% कितना हो गया? 150 करोड़। 150 करोड़ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ही हैज टू पे इन द बिगनिंग एंड 2% रिटेंशन अमाउंट। रिटेंशन अमाउंट क्या होगा? इफ एनी डिफेक्ट कम्स इन द प्रोजेक्ट, सो दैट डिफेक्ट विल बी रेक्टिफाइड विद दिस रिटेंशन अमाउंट। सो ये रिटेंशन अमाउंट है, इट विल नॉट बी पेड इन द बिगनिंग, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रनिंग बिल। तो हर एक रनिंग बिल से ये रिटेंशन अमाउंट डिडक्ट किया जाता है, तो ये आउटफ्लो में हम बताएंगे। फाइन। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी विल बी रिलीज्ड एट आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। तो 5 साल के बाद ये जो प्रोजेक्ट खत्म होगा, है ना, प्रोजेक्ट खत्म होने के 5 साल के बाद ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रिलीज हो जाएगी। एंड रिटेंशन अमाउंट, सो व्हाट विल डू ना, विल मेक इट 6 ईयर हियर बिकॉज इट विल बी अगेन, एक एक साल इधर बढ़ा देते हैं हम। आपका मतलब एक अच्छा फाइनेंस स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है। तो ड्यूरिंग द 6th ईयर यानी आफ्टर द 5th ईयर विल बी रिलीज एंड रिटेंशन अमाउंट विल बी रिलीज इन द 7th ईयर एट द एंड ऑफ द डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड। तो दिस इज देयर। समझ रहे हैं अभी तक क्या डिस्कस किया? और अंडरस्टैंडिंग दिस? Whatever is discussed up to now, are you understanding the advances in performance security? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So performance security will be deducted 3%, retention amount 2%, but retention amount not totally at one stretch. It will be deducted in each running bill. Okay. So performance security will be released at the end of the project during the 6th ईयर। 5 साल का प्रोजेक्ट है तो 6th ईयर में रिलीज की जाएगी एंड रिटेंशन अमाउंट विल बी रिलीज इन द 7th ईयर एट द एंड ऑफ द डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड। जब डिफेक्ट्स लायबिलिटी, यानी इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि 2 ईयर्स का डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड होगा इधर। बस 5 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, 7th ईयर में रिलीज किया जा रहा है, इसका मतलब 2 ईयर्स का डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड है। तो वॉट एवर डिफेक्ट्स आर देयर, इट विल बी रेक्टिफाइड फ्रॉम दिस 2%। एंड अगर उस 2% में कुछ बचता है डिफेक्ट्स रेक्टिफाई करने के बाद, तो फिर वो पैसा वापस दिया जाएगा किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। मेकिंग सेंस? फाइन। अच्छा, तो द ईयरली बिल्स पेएबल टू द कॉन्ट्रैक्टर, अब ये 5 साल का प्रोजेक्ट है तो 4 साल का इधर दिया है, तो मे बी, हाँ, तो व्हाट वी कैन डू हियर ना, कितना होता है इसका टोटल? 1,000 और ये विल स्प्लिट सम अमाउंट ना, विल मेक इट फॉर 5 ईयर्स। टोटल देखो कितना है, 2200 एंड दिस इज हाउ मच, 36 एंड 44 650 बराबर है। टोटल इज 5,000, जस्ट चेक। आई स्प्लिटेड दिस, ये जो प्रॉब्लम था 4 ईयर्स का था, तो आई एम मेकिंग इट 5 ईयर्स सो दैट, ठीक है, यू आर मोर कंफर्टेबल इन सॉल्विंग इट। एग्जाम में जो निर्णय के लिए 4 ईयर्स का था, पर्पजफुली आई मेड इट 5 ईयर्स। ठीक है। हाँ, फाइन। सो नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ तक समझा? तो ये बिल्स है किसका? दिस आर द रनिंग बिल्स, आरए बिल्स बोलते हैं इसको, रनिंग अकाउंट बिल्स। सो दीज बिल्स नीड टू बी गिवन बाय द क्लाइंट टू द कॉन्ट्रैक्टर। फाइन। सो ये सारा इनफ्लो में आएगा कॉन्ट्रैक्टर के। ठीक है। नाउ सी, नेट प्रॉफिट फ्रॉम द अबव प्रोजेक्ट बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस इज 10%। ठीक है। तो ये जो बिल है उसमें से 10% आर व्हाट? प्रॉफिट। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इधर। नेट प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस मतलब टैक्स जो लगता है वो प्रॉफिट पे लगता है एंड नॉट ऑन द इनफ्लो। दिस यू रिमेंबर प्रॉपरली। भले ही बिल 1,000 करोड़ का है, 1,000, जैसे फर्स्ट ईयर में
टैक्स कैसे कंप्यूट होता है, एनुअली कंप्यूट होता है. तो ऑल्दो द बिल इज ऑफ 1000 crores, but tax will not be for 1000 crores. whenever the government will be levying the tax, और जब भी उनको टैक्स पे करना है कॉन्ट्रैक्टर को, गवर्नमेंट को, तो इट विल नॉट बी ऑन द टोटल बिल अमाउंट, इट विल बी ऑन द प्रॉफिट. ऑलवेज रिमेंबर, इनकम पे बिल होता है, नॉट ऑन द इनफ्लो. इनकम पे बिल है, जो प्रॉफिट आएगा इसमें से जब हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और जो बचा हुआ अमाउंट है, अभी जैसे वो बोल रहे प्रॉफिट इज 10%, एक्सपेंसेस कितना होगा, 90% विल बी द एक्सपेंसेस. So 10% is the profit. So tax which will be levied will be only on 100 crores and not 1000 crores for the first year. So net profit from the above project before deduction of taxes is 10%. So 10% profit है हर साल. Profit is accounted yearly in proportion to the bill amount. यानी हर साल इनका 10% profit हमको लेना है. Although actual profit will be realized after the project, है ना. एक्चुअल प्रॉफिट ऐसा नहीं बोला जाएगा कि हर साल मिल रहा है, लेकिन बिकॉज कंप्यूटेशन करना है, टैक्स भरना है, तो हमको हर साल बताना पड़ता है उसमें. फाइन. के बाद देखो, everybody is listening to this ना, otherwise what will happen ना, you won't be able to solve it properly. गलतियां करोगे इसमें. whatever doubts you have, you immediately ask me, don't keep any reservations. तो प्रॉफिट विल बी व्हाट, 10% ऑफ दिस अमाउंट. तो प्रॉफिट का हम एक अमाउंट बनाएंगे, भले ही ये इनफ्लो में है, तो प्रॉफिट हम डबल शो नहीं करेंगे, इनफ्लो में ऐड करेंगे नहीं इसको, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ दिस. बट इसके बेस पे हमको इनकम टैक्स जो बताना है वो आउटफ्लो में जाएगा. दैट विल डिस्कस हाउ इट इज टू बी डन. तो इनकम टैक्स इज चार्ज एट 30%. तो इसके ऊपर इनकम टैक्स आएगा किसके ऊपर, 10% प्रॉफिट के ऊपर 30% इनकम टैक्स आएगा. तो इनकम टैक्स विल नॉट बी ऑन दिस 1000 करोड़, बट इट विल बी ऑन 100 करोड़. 100 करोड़ पे इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, एंड दैट विल बी 30% विच विल बी आउटफ्लो. तो 100 करोड़ का भले ही प्रॉफिट दिख रहा है कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन 100 करोड़ में से 30 करोड़ जाएगा गवर्नमेंट को, 70 करोड़ का उसको नेट प्रॉफिट होगा. वर्किंग कैपिटल टू बी रेज इज एस्टिमेटेड एट 10%. अभी इसको जो पैसा खर्चा करने के लिए, इसको जो ये करना है पैसा, क्या बोलेंगे, पैसा जो रेज करना है ना, तो दैट मनी विच नीड्स टू बी रेज इज नीडेड टू बी रेज एट 10%. यानी उसको जो भी बैंक से लोन उठाया उसने, या कोई शेयर मार्केट से पैसा लिया है, जो भी लिया, वट एवर सोर्स ऑफ मनी ही हैज टेकन फ्रॉम, money from, he needs to give it back at 10% charge. Some charge is to be paid 10%. So working capital may be divided in proportion of the yearly bill. तो वर्किंग कैपिटल जो उसको रिक्वायर्ड है, अभी पूरा का पूरा पैसा तो वो गवर्नमेंट से नहीं लगा, तो सिर्फ 10% अमाउंट वो, सॉरी 10% अमाउंट वो क्या करेगा, दूसरों से लेगा. बाकी का 90% तो उसको खुद का लगाना है या एडवांसेस में यूज करना है, वो सब करना है. बट 10% of this amount he needs to be raised for as working capital. Working capital यानी 100 करोड़ का 10% will be raised as working capital. Working capital may be divided in proportional of yearly bills. Working capital may be divided in proportion of yearly bill. तो जो भी अपना वर्किंग कैपिटल है उसके ईयरली बिल का 10% हम लेंगे. तो 100 करोड़ का 100, 1200 करोड़ का 10% इज 1200, है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस. 1200 का 10% इज 120. सर 1200 का 10% 120 आएगा. हाँ 120, दैट्स ऑल. फाइन. सो एवरी एवरी एस्टिमेटेड अमाउंट का 10% विल बी योर, 10% will be what, 10% will be your working capital which will be profit. 10% is different, working capital is different. Working capital inflow होगा ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, एंड उसको वापस भी करना है ना. तो वर्किंग कैपिटल में भी डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन ऑफ द ईयर विल. इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल इज 10%. तो अभी इस पे इंटरेस्ट भी लग रहा है 10%. यानी वॉट एवर मनी यू हैव रेज्ड, तो ये जब टोटल करोगे ना, अभी ये 10% बाइफरकेट करके हमने डाला, लेकिन इसका टोटल जब करेंगे 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 10% इज वर्किंग कैपिटल. तो व्हाट इज द टोटल वर्किंग कैपिटल रेज्ड, देखो ना, 5000 इज द टोटल कॉस्ट विच ऑफ द प्रोजेक्ट. उसमें से 10% इज वर्किंग कैपिटल. ऑल्दो यू आर गिविंग 100 करोड़ इधर, 120 करोड़, लेकिन टोटल कितना है, इसका टोटल कितना होगा,
वर्किंग कैपिटल का? बोलो, what will be the total of working capital? सिंपल है ना, 10% है। 10% ऑफ, भले ही हर साल हम 10% दे रहे हैं, लेकिन जब टोटल करेंगे इसको तो 10%, 5,000 इज द टोटल अमाउंट, इजंट इट? So 10% is working capital. So every year, if you even if you raise 10%, तो ultimately also it will become 10% only ना। तो 5,000, इसका टोटल 5,000 है, तो वर्किंग कैपिटल कितना होगा? It will be 500 crores, isn't it? ये समझ रहा है? Am I audible? हेलो? समझ रहा Yes, है मैं sir. समझ। हाँ सर. थोड़ा सम दिखाओ ना दोबारा। सो वर्किंग कैपिटल में भी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू बी रेज इज एस्टिमेटेड एट 10%। तो टोटल जो कॉस्ट है 5,000 करोड़ का 10% वर्किंग कैपिटल लगे। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शन, एंड दैट वर्किंग कैपिटल इज नथिंग। वर्किंग कैपिटल हमने डेफिनेशन में देखी, नेट एसेट माइनस नेट लायबिलिटी। बट to maintain a positive this, what is happening, working capital is raised from say some banks or some financial institutions, and it is raised at 10%, 10% interest, यानी 10% ये है एंड 10% उस पर इंटरेस्ट भी है। नाउ दिस परसेंट में चेंज, एग्जाम में आपका प्रॉफिट चेंज हो जाता है, कभी 6% रहता है, कोई प्रॉफिट में 15% भी बनाते हो कोई प्रोजेक्ट में। इनकम टैक्स समटाइम्स इट इज 25%, समटाइम्स इट इज 30%, बट दिस रेंज इज मोर और लेस 25 to 30% होगी। वर्किंग कैपिटल भी कोई कोई प्रोजेक्ट में ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है, जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट क्या बोलेंगे, अ, अभी इसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट इटसेल्फ इज क्वाइट ह्यूज। तो 10% इज अ बिग अमाउंट ना। 10% भले आपको लग रहा है 10% ही है, लेकिन 10% भी इसका 500 करोड़ है। बट कोई जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें, है ना, द प्रोजेक्ट विल बी से ऑफ ओनली 10 करोड़, 10 करोड़ और 15 करोड़ और 20 करोड़, तो उसमें 10% विल नॉट बी दैट बिग अमाउंट, इट विल बी अ वेरी स्मॉल अमाउंट। सो इन दैट सेंस वर्किंग कैपिटल विल बी, इट मे बी मोर, 20% हो सकता है, 15% हो सकता है। इंटरेस्ट भी आपको भी सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, जनरली प्रैक्टिकली सिंपल इंटरेस्ट कभी नहीं होता है, ऑलवेज इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। यू ऑल नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बट टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट बोला नहीं जाता कंप्यूट करने, अदरवाइज न्यूमेरिकल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही बोला गया है इधर, और एग्जाम में भी सिंपल इंटरेस्ट ही आता है। तो इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल इज 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो वर्किंग कैपिटल है 500 करोड़ जो रेस किया है, उस पर 10% सिंपल इंटरेस्ट है। 10% कितना हो गया 500 करोड़ का? 500 का 10%, 50 sir. 50 करोड़ हो गए ना। तो दैट 50 करोड़ विल बी द इंटरेस्ट कंपोनेंट, प्रिंसिपल विल बी 500, 500 प्लस 50 यानी 550 करोड़ उसको पे बैक करना है। भले ही उसने 500 लिया, लेकिन 500 नहीं देगा, बैंक या जहां से भी लिया उसको 550 देगा। तो रीपेमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज टू बी कंसीडर्ड इन द 5th and 6th ईयर टुगेदर विद द सिंपल इंटरेस्ट। यानी 550 करोड़ अभी 2 ईयर में बोला है, तो 550 डिवाइड बाय 2, यानी 275 इन द 5th ईयर, 275 इन द 6th ईयर। ठीक है। कंसिडर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज 12%, तो ये भी एक वैल्यू दिया है 12%, दिस ऑल्सो यू नीड टू कंसिडर। ये दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब आपका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए आपको जो वैल्यू यूज करना है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज आल्सो नोन एज डिस्काउंटिंग फैक्टर, कभी कभी इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर भी बोला जाता है। ओके, नाउ दिस इज वन थिंग। नाउ लास्ट थिंग इन दिस इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट्स अराइजिंग ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इज 1.5% ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। तो 1.5%, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट है तो काफी उसमें डिफेक्ट्स होंगे, 1.5% ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। तो लकीली फॉर यू, यू आर कलेक्टिंग 2% ऑफ रिटेंशन अमाउंट। अब देखो, ये 2% है ना, इधर 2% है, so this retention amount should always be more than this estimated cost of defect, so that is what will happen। तो पैसा पूरे करे, जो अमाउंट रिटेन किया गया है ना, वो डिफेक्ट्स रेक्टिफाई करने के लिए इट विल नॉट बी सफिशिएंट ना।
So because estimated cost is 1.5%, it may be more, it may be less, but based on some studies, it is estimated कि 1.5% होगा for that particular project, है ना? Sometimes on some project is 3% also, 5% also, depending on the quality of work. So 1.5% is the estimated cost of the defects. So that also need to be taken into account in the outflow. So what is said? Prepare a cash flow statement for the contractor over the 6-year period. Okay. Represent the total yearly inflows and outflows with respect to time graphically. तो एक ग्राफ पेपर भी आपको यूज करना है. And identify whether the investment, whether additional funds may be necessary. तो आपको देखना है कि कोई प्रोजेक्ट में इनफ्लो इज, कोई भी ईयर में वेदर इनफ्लो इज मोर देन, सॉरी, आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो इन एनी ईयर. अभी 1 2 3 4 5 5 साल के लिए आप प्रोजेक्ट वर्क करो, तो कोई इस 5 साल में इन एनी ऑफ द इयर्स वेदर आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो, उस टाइम पे क्या होगा? देन अगेन यू नीड टू हैव सब्सिडरी फंड्स. आपको और फंड्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा. दस क्या होगा? प्रोजेक्ट विल कम टू स्टैंड स्टिल, बिकॉज आपने जो ये वर्किंग कैपिटल एंड ऑल एस्टिमेट किया, दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट 10%. बट वो जब जोड़ने के बाद भी, आफ्टर एडिंग दिस ऑल्सो, इट मे हैपन दैट यू मे फेल शॉर्ट ऑफ मनी. जब आप इनफ्लो आउटफ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट करोगे ग्राफिकली, जब देखोगे, तो यू मे फेल शॉर्ट ऑफ मनी. In that case, you need to consider some additional funds also, and then you need to, based on the additional funds, you need to decide, you need to find out what will be the implications for. Fine. So this you need to identify, and based on NPV. तो NPV से वो तो लास्ट स्टेप है, हम देखेंगे after you prepare the cash flow statement. Based on the NPV, suggest whether the investment in the above project is feasible or not. तो हमको ये डिसाइड करना है कि whether the contractor should go for the project or not. ठीक है. सिंपल उसका एक क्राइटेरिया, एनपीवी शुड बी पॉजिटिव. एनपीवी इज पॉजिटिव, यू शुड इन्वेस्ट. इफ एनपीवी इज नेगेटिव, यू शुड नॉट इन्वेस्ट. अदरवाइज में उसको फायदा ही नहीं है ना. भले ही उसको दिख रहा है कि प्रॉफिट 10% है, लेकिन जब एनपीवी नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है? when the project is seen over the entire extent, when discounting factors और सब लगा के जब प्रोजेक्ट देखा जाता है, इट मे बी प्रॉफिट नाउ इट इज सीम पॉजिटिव, लेकिन वो जो भी पैसा खुद का डाल रहा है कॉन्ट्रैक्टर, और जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, he may come across a scenario where the NPV may become negative and hence the project may not be feasible. The exam may, based on the NPV value, you need to suggest whether it is feasible or not. Today in the numerical you may get it is feasible, but to values change होने के बाद it may be that it may not be feasible. So you need to, based on whatever answer you get, you need to comment. Fine. So what you do now, you take a screenshot. अब इसका कैसे screenshot लेंगे? Or what I'll do now, this sample question paper I'll just send to you on the group. Okay. Sample question paper I'll send on the group. So other questions also will have, it will be better. ठीक है. तो ये आपको मैं भेजता हूँ. So I have sent this numerical. All of you download the numerical. Question paper download करो.
Have you downloaded? Anybody of you have downloaded this? Yes, sir. So first and foremost, what we'll do is we'll prepare the cash inflow statement, right? So simply see, सर मैं बंद कर लेता हूँ. कैश इनफ्लो स्टेटमेंट इज देयर है ना. तो इनफ्लो क्या क्या होगा, यू जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन. अच्छा, बिफोर दैट ना व्हाट आई विल डू ना, आई विल जस्ट राइट हियर ईयर नंबर. तो ईयर कहाँ से कहाँ तक आएगा? ईयर नंबर विल बी, हाउ मेनी इयर्स आर देयर फॉर द प्रोजेक्ट? 5 years. 5 years, 1 2 3 4 5 प्लस 2 years are for defects liability ना, ये है ना क्वेश्चन में. 5 years are there for the project, but 2 years है ना. 6 and 7 year भी दिया है ना, 6 and 7 year भी दिया है. तो 2 years are for defects liability, 2 years are for defects liability. आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में वो 5th and 6th को 6 and 7 कर दो. क्वेश्चन पेपर में जो 7th सब ये है पैरामीटर, उसमें 5th and 6th है. I have changed the condition, so it will be changed to 6 and 7, and this will be 7 year period. Fine. ये दो चेंजेस किया है मैंने, देखो. This was 5th and 6th year, it has become 6th and 7th year, and this is what 7 year period. So इनफ्लो स्टेटमेंट भी आपको 7 year के लिए बनाना है, आउटफ्लो स्टेटमेंट भी आपको 7 year के लिए बनाना है. फाइन. इनफ्लो इज ऑल्सो फॉर 7 years, आउटफ्लो इज ऑल्सो फॉर Yes, sir. 7. Yes. तो अभी इधर हम हेड्स लिखते जाएंगे, जो सारे हेड्स हैं. दिस ऑफन बिकम्स अ वेरी कैन से, ज्यादा कॉलम्स आ जाते हैं इसमें. तो एग्जाम में, पेपर में, सम पीपल व्हाट दे डू ना, दे मेक इट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बना के लिखते हैं. तो हाउएवर यू सॉल्व दैट इज ओके, दैट इज फाइन. ओनली थिंग इट शुड बी क्लियरली रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए, बराबर समझ में आना चाहिए. तो इफ इवन इफ यू कैन सॉल्व हियर इन शॉर्ट में, अगर अब लिख के अगर 10-11 कॉलम जो भी है वो बिठा सकते हो स्ट्रेट इसमें, पोर्ट्रेट में भी बिठा सकते हैं, देन इट इज फाइन. बट वट एवर इट यू हैव रिटन, इट शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, शॉर्ट में भी लिखो तो भी if the meaning is understood, that's fine. तो one on one we'll just start writing the various parameters. ठीक है. तो मोबिलाइजेशन एडवांस है ना, इनफ्लो में आएगा पहले. तो मोबिलाइजेशन एडवांस 6% of the project work. So you leave some space for calculations also in the question in the answer sheet, because you need to calculate also ना. अभी ये तो एकदम सीधा सीधा फिगर है. फॉर ईज ऑफ सॉल्विंग ना, दिस फिगर इज वेरी सिंपल. बट ये प्रोजेक्ट कॉस्ट इतना नहीं होता है ना, हमेशा राउंड फिगर नहीं होता है. इट में बी 436.5 करोड़, 780.2 करोड़ है ना. तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डायरेक्टली कैलकुलेट 6%. अभी इधर आप डायरेक्ट बोल रहे हो 6% 300 करोड़, दैट इज ईजी ना, देख के समझ में आ रहा है. फॉर ईज ऑफ सॉल्विंग इट इज गिवन लाइक दैट. बट you should be leaving some space for calculation, so that you can calculate it and you can save the value somewhere, because calculator में करके आपको कहीं तो उसका वैल्यू सेव करना है, so that you will not get confused. So write down the value. 6% of 500 crore, 5000 crore कितना होगा इधर लिखो. So what is this? This is the mobilization advance. Just make this one. मोबिलाइजेशन एडवांस is 6%, तो कितना है, कौन से ईयर में आएगा? Year में आएगा. फर्स्ट ईयर में आएगा. जनरली दिस फर्स्ट ईयर मीन्स व्हाट? फर्स्ट ईयर मतलब उसमें 0 ईयर कुछ होता नहीं है. 0 ईयर मीन्स व्हाट? इट इज 0 ईयर. तो अभी जब टेंडर इज सेंड, इट इज 0 ईयर. सो 0 to 1, दैट इज 1. तो जो भी उसका ड्यूरेशन है ना, मैंने समझो प्रोजेक्ट स्टार्टेड है जनवरी, तो दिसंबर में भी उसको फर्स्ट ईयर बोलेंगे, जनवरी में भी उसको फर्स्ट ईयर बोलेंगे.
2021 December is also first year, 2021 January is also first year, 2021 June is also in the first year only. ठीक है, this you should remember, otherwise 0 ईयर अलग करोगे, फर्स्ट ईयर अलग करोगे तो you'll be confused. तो इसको फर्स्ट ईयर में ही गिनो सारे को. तो मोबिलाइजेशन एडवांस कितना है? 6% है ना? कितना है मुझे वैल्यू बताओ. 300 crore. 300 crore. So 300 I will plus put here. Then what next? Let's see. आउटफ्लो का छोड़ दो अभी. पे बैक जो है ना, थ्री वो आउटफ्लो टेबल में जाएगा. तो दैट विल मेक इट सेपरेटली. जैसे अभी इनफ्लो बनाया ना, वैसे आउटफ्लो भी बनाएंगे, लेकिन अलग से बनाएंगे. जैसे इनफ्लो है वैसे आउटफ्लो अलग से आएगा. फाइन. तो दिस विल बी देयर इन आउटफ्लो. जो आउटफ्लो में जा रहा है उसको अभी फिलहाल के लिए बाजू में रखो. सी एडवांस इज 10%. सो सी एडवांस सेम टर्म आई विल टेक हियर. ठीक है. अब बुक में लिख रहे हो ना, बुक में यू ट्राई सॉल्व इट प्रॉपरली, केयरफुली सॉल्व करो उसको अच्छे से. सी एडवांस कितना है? 10% है ना? कितना है अमाउंट बताओ. दीज ऑल वैल्यूज आर इन रुपीज. 500. 500 crores. 500 crores. 500 crores हो जाएगा. सी एडवांस. व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या है? ये दोनों तो बहुत इजी है. देयर इज नथिंग. Secure advance. सिक्योर्ड एडवांस. ठीक है. सिक्योर्ड एडवांस कितना है? हाउ मच इज सिक्योर्ड एडवांस? 50% of the 5,000 crores. Then हाँ. again it is 60% of that. ओके. सो आई विल जस्ट मेक रफ कैलकुलेशन. 50% ऑफ 5,000 करोड़ ना. 50% ऑफ 5,000. 50% ऑफ 5,000 कितना हो जाएगा? 2,500. और उसका 60% है ना. 60% ऑफ दिस वैल्यू, इजंट इट? 1500. 1,500. हाँ, 1,500 करोड़. 1,500 crores. 1,500 करोड़ है. बट दिस 1,500 करोड़ में भी ट्रिक है. इट इज नॉट गिवन एट वंस. दिस 1,500 करोड़ इज ऑल्सो नॉट गिवन एट वंस. इट विल बी गिवन इन proportion to year level. ऐसा ही लिखा है ना. secured advance against material brought to satisfy 60% material yearly level. It is in proportion to the yearly bill. तो भी आपको yearly bill देखना पड़ेगा. तो yearly bill इधर नीचे दिया है. So this also I will copy. So whatever value is here, है ना, जो ये जो वैल्यू है 1,500 करोड़ भले ही ये है. 1,500 करोड़ भले ही इधर दिख रहा है. ठीक है. 1,500 करोड़ करोड़ भले ही दिख रहा है, लेकिन it will be given in proportion. Now what is the proportion? Simply if you want to find the proportion, what we need to do, I'll just show you another step. प्रोपोर्शन क्या है इसका? हम पहले टोटल करेंगे. इसका टोटल शुड बी हाउ मच? बाय डिफॉल्ट कितना होना चाहिए? 5,000. 5,000 होना चाहिए. तो व्हाट इज दिस प्रोपोर्शन आउट ऑफ 5,000? तो दिस डिवाइड बाय, ये फिगर करोगे तो वो होना चाहिए. तो इसको ड्रैग करो. फिर ड्रैग करोगे तो वो नीचे नीचे जाएगा. तो दिस इज दिस वैल्यू. तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू हैव टू गिव द सेम रेफरेंस इन एक्सेल, यू शुड डू दिस. पुट अ डॉलर साइन. डॉलर डॉलर करोगे तो सेम रेफरेंस रह जाएगा. Reference doesn't change if you put a dollar sign. Okay. So this you compute. I have computed directly because I have Excel, but आप compute करो इसका proportion. Just a moment. ये just verify करो, इतना ही आना चाहिए because Excel will not give wrong values. This is the proportion. What we have done is the proportion of this. So based on that,
व्हाट वी नीड टू डू इज दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, इसमें भी डॉलर डॉलर डाल देंगे। ये समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव डन हियर? Yes, यस नहीं sir. सर। समझ? यस सर, बिल का है ना, ये नहीं किया ना सर, हम लोग तो ये भी कर सकते हैं ना, जो 1000 करोड़ से है उसका 50% इंटू 60% सेम ही हाँ, वैल्यू है। that also can be done, yes, that also can be done. It is one and the same thing ना, it is one and the same thing। आप ऐसे करो या वैसे करो, ultimately you should get this value, fine। Ultimately जैसे आप बोल रहे हो ना, to directly and instead of doing this you can do in that way also, that is also fine। So this is the values which are there for the running for the, ये क्या है, एडवांस, सिक्योर्ड एडवांस। तो दिस वैल्यूज डायरेक्टली आई विल कॉपी पेस्ट देयर। आप लोग बुक में सॉल्व करो। सॉल्व। हाँ यस सर, सॉल्व। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, sir. साइमुद्दीन, Yes, sir, solving. वहाँ सॉल्व करो, लेकिन वैल्यू समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, वो वैल्यूज समझ में आ रही है Yes, ना? sir. Yes, sir. धनवंती, धनवंती, तरन्नुम, एनी एनी Yes, डाउट? sir. नो डाउट स्टिल Yes, नाउ? sir. No, no. ओके, ओके, सो दिस इज डन। Secured advances you have done, you have got this secured advance। सिक्योर्ड एडवांस की वैल्यू आई क्या, सबको समझ में आया? Yes, sir. सर वापिस बताओ ना। दैट्स व्हाट ना, देखो सिक्योर्ड एडवांस का क्या है ना, वी विल जस्ट रीड द कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज अगेन, स्टैंडर्ड क्लॉज हम देखते हैं। मटेरियल कंपोनेंट है ना, मटेरियल कंपोनेंट इज हाउ मच, 50%, बराबर। टोटल जो हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, ध्यान से सुनो इसको, टोटल जो हमारा टोटल कॉस्ट है 500 करोड़, उसमें से 50% ही मटेरियल कंपोनेंट है, ठीक है। तो 500 करोड़, 5000 करोड़ का 50% इज 2500 करोड़, बराबर। अभी उस 2500 करोड़ में से अभी पूरा का पूरा पैसा तो कॉन्ट्रैक्टर को देगा नहीं ना, क्लाइंट, क्लाइंट बोलेगा कि तुम भी खुद अपना कुछ पैसा डालो उसमें। वाई एंटायर मनी विल आई शैल गिव यू ना। तो इट इज डिसाइडेड इन द टेंडर, इन द कॉन्ट्रैक्ट, दैट 60% एडवांस मिलेगा उसको मटेरियल लाने के लिए, और बाकी का 40% उसको अरेंज करना है अपने फाइनेंसेस से, कॉन्ट्रैक्टर। तो सिक्योर एडवांस अगेंस्ट मटेरियल्स ब्रॉट टू साइट, है ना, इज 60% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। तो ये जो भी 2500 करोड़ है, 2500 करोड़ में से 60% यानी 1500 करोड़, बराबर ना, 1500 करोड़ एडवांस देगा कौन, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस देगा। बाकी का 1000 करोड़ उसको खुद से अरेंज करना है, लेकिन 1500 करोड़ कौन देगा, क्लाइंट देगा कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल साइट पे लाने के लिए। अभी आफ्टर ब्रिंग, अच्छा, ये भी 1500 करोड़ एक साथ नहीं देगा वो, 1500 करोड़ एक साथ नहीं देगा, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, द कॉन्ट्रैक्टर विल मिस यूज इट समवेयर एल्स, तो दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करेगा, बिकॉज पैसा उसका एक्सेस, उसको अभी तो मटेरियल, मटेरियल क्या, मटेरियल इज नॉट ब्रॉट एट वंस एट द साइट ना। सीमेंट बैग भी है, वो एक साथ थोड़ी लाई जाएगी, स्टील भी एक साथ थोड़ी लाई जाएगा, इट विल बी एज एंड वेल रिक्वायर्ड। बात समझ रहे हो? तो इट, दो ये जो मटेरियल कंपोनेंट है, इट कैन बी इधर गिवन मंथ वाइज, और मंथ वाइज बिकॉज ये प्रॉब्लम में एक्चुअली इट इज गिवन मंथ वाइज ओनली, और क्वार्टर वाइज दिया जाता है, बट इट इट न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए आपको बहुत टीडियस हो जाएगा। एक्चुअल जो फिजिकल कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं तो उसको मंथ वाइज और क्वार्टर वाइज पैसा ऐसा दिया जाता है ना, फिजिकली प्रैक्टिकली, बट
in the exam it is not solved, it will become quite tedious, इसलिए आपको yearly to simplify your numerical it is given yearly only. तो इसका जो प्रोपोर्शन है वो ईयरली दिया जाए, ईयरली जो बिल बनता है ना, जो बिल जनरेट हो रहा है, ये जो अपना डिफरेंट बिल जनरेट हो रहा है, एस्टिमेटेड बिल जो है उसका 60-60% है ना, समझ रहे हो? तो ये देखो, ये ऐसा भी कर सकते हो आप, 1000 करोड़ का 50% इज मटेरियल कॉस्ट, तो 1000 करोड़ का 50% इज हाउ मच, 1000 करोड़ का 50% 500 करोड़, बराबर? तो 500 करोड़ का 60% इज व्हाट, 500 का 60% कितना होता है? 100% is 500, so 60% is how much? 300. 300 crores. So 300 crores will be given by the contract client and बाकी का 200 करोड़ needs to be arranged by the contractor. तो 500 करोड़ के मटेरियल अगर साइट पे आ रहे हैं तो 300 करोड़ क्लाइंट देगा, 200 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर देगा, और ये 300 करोड़ भी ऐसा नहीं कि 300 करोड़ खत्म करना है, नहीं, इसको वापस करना है 300 करोड़, बिकॉज इसको क्लाइंट अलग से बिल भी दे रहा है। ये जो बिल आ रहा है ना 1000 करोड़ प्रॉफिट के साथ, वो भी मिल रहा है इसको, लेकिन अभी उसको काम चलाने के लिए, काम यूज करने के लिए ये 300 करोड़ वो विदाउट इंटरेस्ट उसको दे रहा है। अभी क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को 300 करोड़ दे रहा है जो वो वसूल करेगा उससे बाद में। ये 300 करोड़ ऐसा नहीं है कि उसको खत्म करना है, उसको मटेरियल ला दिया खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। दैट 300 करोड़ वो वापस लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को, फ्यूचर बिल से कम होकर किया जाएगा, वो आउटफ्लो में आएगा आपके, क्योंकि उसको बिल भी मिल रहा है ना 1000 करोड़ का, समझ रहे हो? तो 300 करोड़ वो काम चलाने के लिए उसको दे रहा है, बट दैट 300 करोड़ विल बी टेकन बैक। सो अभी के लिए इनफ्लो में आएगा, लेकिन अल्टीमेटली इट विल बी आउटफ्लो। सो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप इधर डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, इसका 50% है फिर उसका 60%, ऐसा भी करके कर सकते हो। या जो मैंने आपको मेथड बताया, दोनों मेथड इज बोथ आर सेम, वन एंड द सेम थिंग होंगे ना। खाना आप चाहिए तो सीधा आप मुंह में डालो या सर के बाहर घुमा के डालो, बोथ आर वन एंड द सेम, खाना पेट में जाएगा। ओनली थिंग यू नीड टू डिसाइड विच मेथड इज मोर कन्वीनियंट टू यू। फाइन। तो ये वैसा 300 करोड़ फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। सेकेंड ईयर के लिए 360 करोड़ कैसे हुआ? 360 करोड़ सिंपली, इफ यू सी ईयर दिस इज 1200, तो इसका 60, इसका 50% विल बी 600 और उसका 60% विल बी 360, बराबर? वैसे हर ईयर के लिए करो। इतना पैसा क्लाइंट देगा कॉन्ट्रैक्टर को फॉर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, तो यू जस्ट कंप्यूट फॉर ऑल दीज ईयर्स। यू आर नॉट राइटिंग ईयरली बिल्स हियर बिकॉज वो आगे आएगा, ईयरली बिल्स भी लिख देता हूँ मैं इधर आगे। ईयरली बिल्स ऑल्सो वी विल राइट हियर, ईयरली बिल्स, बिकॉज ये भी पैसा गवर्नमेंट क्लाइंट दे रहा है ना कॉन्ट्रैक्टर को। ईयरली बिल्स सेम एल कॉपी है, समझ रहा है ये? समझा ना? ईयरली बिल्स क्या, ईयरली बिल सिंपल, जस्ट जस्ट जो वैल्यूज है उसको एज इट इज उतारना उधर, और कुछ नहीं। इतना पैसा, दिस आर द रनिंग बिल्स, ठीक है? जस्ट अ मोमेंट।
हाँ यस, तो दिस इज अंडरस्टूड। ईयरली बिल्स का समझ में आया? हेलो, Yes, sir. फिर क्या करेंगे नेक्स्ट? इधर तक तो इजी है, आगे क्या है? प्रॉफिट। अब वेरी केयरफुली लिसन हियर, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ दिस ओनली, बराबर? ईयरली बिल का ही है ना, इसको जो पैसा मिल रहा है उसी का पार्ट है। तो प्रॉफिट हम अलग से ऐड नहीं करेंगे। इफ यू वांट ना, इधर मैं लिख देता चाहे तो प्रॉफिट का, बिकॉज प्रॉफिट आपको टैक्स के लिए लगेगा, जब आउटफ्लो कंप्यूट करोगे तो आपको टैक्स के लिए प्रॉफिट लगेगा। तो प्रॉफिट इवन इफ यू राइट हियर ना, बट प्रॉफिट शुड नॉट बी एडेड टू द इनफ्लो। तो प्रॉफिट के लिए आई जस्ट मार्क इट विद डिफरेंट कलर। प्रॉफिट भले ही आप इधर लिखो इधर, बट प्रॉफिट विल नॉट बी एडेड टू दी टोटल फिगर। समझ रहा है? नहीं समझ रहा है तो पूछो मुझे फिर से। ईयरली बिल जो है, ईयरली बिल का ही पार्ट प्रॉफिट होगा। कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसा देगा 90% उसका खर्चा होगा, 10% प्रॉफिट है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ दियर ईयरली बिल। ऑलरेडी वो पैसा आ चुका है उसके पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास। तो हम सेपरेटली उसको ऐड नहीं करेंगे, बट इधर हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हमको आउटफ्लो में क्या करना है, आउटफ्लो में इनकम टैक्स बताना है। तो उसके लिए हमको ये वैल्यूज लगेंगे, समझ रहे हो? यू कैन राइट हियर इफ यू वांट, और एल्स व्हाट यू कैन डू, you can write it somewhere, and you can without writing also, if you are, you know, once you are pro with that na, you can without that also you can do. Without that also you can do. So yearly bills जो होगा उसका प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ ईयरली बिल, सो यू नीड नॉट राइट सेपरेटली। अभी समझने के लिए, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल, यू कैन राइट। अदरवाइज वंस यू आर कॉन्फिडेंट विद इट ना, आप डायरेक्टली अगर आउटफ्लो में उसको प्रेजेंट कर सकते हो विदाउट राइटिंग दिस, देन इट इज वेल एंड गुड, बिकॉज वो एक्चुअली इसका पार्ट है ही नहीं और इनफ्लो का पार्ट है ही नहीं, बिकॉज प्रॉफिट इज ऑलरेडी अकाउंटेड इन द ईयर। ये समझ रहा है या बाउंसर जा रहा है? सौरभ, Yes, sir. समझा ना? Yes, sir. प्रॉफिट भले ही मैं इधर लिख रहा हूँ आपके समझने के लिए, बट प्रॉफिट इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, तो इसलिए मैं इसको रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप उसमें गलती से ऐड मत करो बाद में। आप एक बार वंस यू आर सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स एंड यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन स्किप दिस ऑल्सो। बट ये प्रॉफिट लिखने का पर्पज इधर ये है बिकॉज आप जब आउटफ्लो बनाओगे तो आपको आउटफ्लो में टैक्स बताना होता है, तो वो गड़बड़ ना हो, टैक्स की गड़बड़ ना हो, इसलिए आई एम पर्पसफुली राइटिंग हियर। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू विल मिस दैट टैक्स का वो पार्ट, मिस मिस कर दोगे तो फिर initially when you are doing it you may, लेकिन एक बार once you have practiced this sufficiently well, so you may take into account that tax also. So without computing profit you can directly solve the tax. So profit कितना है? 10% है। so simply what we'll do, 10% of this है ना, तो this 10% of this will, ये समझ रहा है प्रॉफिट कैसे किए? सिंपली इट इज 10%। नाउ व्हाट, उसके बाद क्या? इनकम टैक्स इज चार्ज एट 30%। तो इनकम टैक्स इधर आएगा, आउटफ्लो में आएगा, बराबर? बराबर ना? अरे बोलो। Yes, sir. इनकम टैक्स, टैक्स इज गोइंग आउट ना, टैक्स विल बी इन आउटफ्लो। वर्किंग कैपिटल इज टू बी रेज्ड एट 10%। तो ये जो आपका पैसा कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट के एडवांसेस एंड ऑल ये सब भी दे रहा है, उसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आपके पास जो आपका खुद का एसेट है उसके अलावा यू नीड टू रेज सम मनी। टू बी रेज्ड बोला है ना इधर, टू बी रेज्ड मतलब क्या हो गया? टू बी रेज्ड लाइबिलिटी हो गया, वो आपको रेज करना है। अभी आप उसको पैसा आप बाहर से लोगे तो वो लाइबिलिटी आपको 10% एस्टिमेटेड है, 10%। यानी टोटल आपकी लाइबिलिटी कितनी है? 5,000 करोड़ का 10%, 500 करोड़ आपको वर्किंग कैपिटल रेज करना है। लेकिन 500 करोड़ एक साथ नहीं रेज करोगे ना, जैसे जब भी आपको लगेगा वर्क, जैसे आपका काम बढ़ रहा है तभी रेज करोगे। पूरे का पूरा पैसा अभी क्यों उठाओगे मार्केट से? तो दिस विल ऑल्सो बी अकाउंटेड इन प्रोपोर्शन टू दी ईयरली बिल। लिखा है ना, वर्किंग कैपिटल में बी डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन ऑफ ईयरली बिल। ठीक है,
वर्किंग कैपिटल में बी डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन ऑफ ईयरली बिल। तो आपका जो ईयरली बिल है इधर, इसके प्रोपोर्शन में 500 करोड़, तो इट इज 10%। तो सिंपली इट इज एज गुड एज प्रॉफिट। इफ इस प्रॉफिट का जो वैल्यू है वही वैल्यू इधर इसका आएगा, किसका? वर्किंग कैपिटल। Same values will be there. If this percent is changed, suppose it is 12%, 14%, luckily for you your profit is and this is both are same, तो आपका एक कैलकुलेशन इधर बच जाता। अगर ये 6% होता, 20% होता और ये कुछ अलग होता, दिस वैल्यूज विल हैव डिफरेंस, सो यू हैव कंप्यूटेड इट डिफरेंट, बट फॉर यू लकीली दिस इज सेम, so you can just directly write working capital. Again this is also 10% of 10% of this, so simply you do this and then you just drag it। ठीक है, ट्रैक करेंगे तो क्या होगा, वो रेफरेंस नीचे नीचे जाता है। देखो ये F4 है ना, पहले F4 का F5 हो गया, F6 हो गया, F7। इफ यू पुट अ डॉलर साइन हियर व्हाट विल हैपन, द रेफरेंस विल नॉट चेंज, इट विल बी द सेम रेफरेंस, जैसे हमने इधर किया है ना। देखो रेफरेंस सेम है, एट 17 के बाद 17 ही है, चेंज नहीं है। ठीक है, तो एक्सेल का भी ये वन सेशन आई वुड लव टू टेक फॉर यू अबाउट एक्सेल, बट उसमें भी क्या है, एक सेशन में कितना कवर होगा क्या, बिकॉज अनलेस यू प्रैक्टिस योर सेल्फ you will not get है ना, you will not enjoy that this, because बहुत सारी चीज़ें एक्सेल में, तो बेसिक बेसिक चीज़ें आई विल कवर, बट if you go into that advanced excel and a lot of things are there and a lot it is a very versatile tool excel actually। वर्किंग कैपिटल के बाद क्या है, जब वापिस कब करना है, दैट इज इन आउटफ्लो, दैट विल नॉट वरी अबाउट राइट नाउ। कंसिडर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये एनपीवी के लिए लगेगा, तो इसको भी छोड़ दो। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट्स अराइजिंग इज दिस। वन मोर थिंग विच वी हैव मिस्ड इज सिक्योर डिपॉजिट एंड रिटेंशन मनी, ये हमने मिस की है। कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे 3% एज परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इन द बिगिनिंग एंड 2% एज रिटेंशन अमाउंट, तो ये भी कहीं तो आना चाहिए। ठीक है, तो यू कैन मेक इट आइदर इन वन, एक साथ बना लो या अलग अलग कॉलम बना लो तो भी चलेगा। तो आई विल मेक वन कॉलम ओनली, और यू कैन मेक टू कॉलम्स आल्सो। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हो गया, फिर क्या है, टेंशन। तो अलग अलग चीज भी बना सकते हो, या इफ यू वांट कैन कीप इट इन वन टेबल ओनली, बिकॉज साथ साथ में ही रहते हैं। हाँ बताओ, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या है, कितना है, हाउ मच इज परफॉर्मेंस सिक्योरिटी? 3%। 3% है ना, तो सिंपली 3% ऑफ 5,000 इज इक्वल टू 3% ऑफ 5,000, दिस इज परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। So it is paid in the beginning, clearly there, and this is 2% of retention amount deducted from each running bill। तो हर एक रनिंग बिल से 2% हमको डिडक्ट करना है। ठीक है, तो सिंपली रनिंग बिल का 2% है, विल बी व्हाट, 2% है ना, टू 2% ऑफ, इसका जब टोटल करोगे ना, इट शुड बी 2%, यानी 100 करोड़ होना चाहिए इसका टोटल। 500 करोड़ का 2% इज 100%, 100 करोड़। पहुंचे यहाँ तक, हैव यू रीच्ड अप टू हियर? सर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नहीं समझा, एक बार रिपीट कीजिए। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है ना, कॉन्ट्रैक्टर वेदर ही विल रन और नॉट फ्रॉम दी साइट आफ्टर टेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, बहुत सारे तरफ बिड करते हैं, एंड व्हाट हैपेंस इफ एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उनको लगा कि नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा, मुझे कोई और कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो व्हाट दे डू नॉट
फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, और जो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं करते, बिकॉज बोलते हैं मुझे इसमें फायदा मिल ही नहीं रहा है, तो दे गेट अनदर कॉन्ट्रैक्ट एंड दे वर्क ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट, बराबर, तो ये प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर से कुछ पैसा बिगिनिंग में लिया जाता है, तो दैट उसका भी पैसा उधर लग गया है ना। इफ नथिंग इज इन्वेस्टेड व्हाट विल हैपन, ही विल कैजुअली लीव दैट प्रोजेक्ट, है ना। बट इफ उसका पैसा कुछ उसमें लगा है, इफ इज 3%, है ना, 3%, 4%, 5%, इवन 10% इज ऑल्सो टेकन इन स्मॉलर प्रोजेक्ट। तो अगर इतना बड़ा अमाउंट अगर उसने पैसा दे दिया है साइड उस पे क्लाइंट को, तो ही विल बी वरीड ना कि ही विल लूज दैट अमाउंट, ठीक है। दिस अमाउंट इज देयर टू एंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट रन अवे फ्रॉम द साइट, ठीक है। एंड रिटेंशन अमाउंट वो अमाउंट है कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद अगर प्रोजेक्ट में कोई डिफेक्ट आता है आफ्टर द प्रोजेक्ट गेट्स ओवर, है ना, तो देर इज अ पीरियड विच इज नोन एज डिफेक्ट्स लाइबिलिटी पीरियड, डीएलपी बोलते हैं उसको। तो उस प्रोजेक्ट में, कोई भी प्रोजेक्ट में, इवन अपने नॉर्मल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी देर आर डिफेक्ट, देर इज अ डिफेक्ट्स लाइबिलिटी पीरियड। सो वॉट एवर डिफेक्ट्स कम इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, so what that defects are to be rectified by the contractor himself, समझ रहे हो। तो इवन आप, है ना, एक नॉर्मल रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में भी जाओगे तो इनिशियल 2 years का मेंटेनेंस एंड ऑल इज पेड। सो वॉट एवर डिफेक्ट्स आर देयर, वॉट एवर डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द डिफेक्ट्स लाइबिलिटी पीरियड, so that need to be rectified, that need to be rectified, that need to be rectified by the that need to be rectified by the contractor himself। अंडरस्टूड। डिफेक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट समझा। रिटेंशन Yes, sir. अमाउंट जो होगा, रिटेंशन अमाउंट से कॉन्ट्रैक्टर के बिल से काटा जाएगा कुछ अमाउंट, जो उसको बाद में डिफेक्ट रेक्टिफाई करने के बाद उसको दिया जाता है, ठीक है। सो दैट विल बी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आउटफ्लो में। अच्छा, आप लोगों ने बताया नहीं मुझे, ये ये आउटफ्लो है, बराबर, कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे ना, ये आउटफ्लो है। हम कौन सा टेबल बना रहे हैं, इनफ्लो बना रहे हैं, बराबर ना। तो कॉन्ट्रैक्टर आउटफ्लो, आउटफ्लो हम अभी क्यों बता रहे हैं, तो दिस विल नॉट कम हियर, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी विल नॉट कम हियर। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इसको कब मिलेगा, इट विल बी एट द ड्यूरिंग द 6th year, सो इंस्टेड ऑफ हियर व्हाट विल राइट इट हियर, इट विल नॉट बी हियर, समझ रहे हो ना, नहीं समझा। Yes, sir. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इधर क्यों लिखा मैंने, बिकॉज आउटफ्लो टेबल में इधर जाएगा वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आउटफ्लो, देखो पहले तो कॉन्ट्रैक्टर को देना ना, क्लाइंट को, ये जो सारे एडवांसेस वाले सब क्या है, client is paying to the contractor, whereas performance security and retention amount, this is the amount which the contractor has to pay to the client, ठीक है। and this retention amount will also not come in the inflow, it will come in the outflow only। retention amount डिफेक्ट्स माइनस करने के बाद इनफ्लो में आएगा, बराबर। तो कितना है डिफेक्ट से मैं बताता हूँ आपको, सुनो समझो इसको, ये बात को समझो। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस विल बी कंफ्यूज। अब देखो, रिटेंशन अमाउंट कितना है, 2% है, उसे डिडक्टेबल, डिडक्टेबल मतलब अपने हर एक बिल में से वो आउटफ्लो में जाएगा, है ना। तो ये जो मैंने अभी इधर इधर जो अमाउंट लिखे थे, ये जो सारे अमाउंट्स है ना, दिस विल नॉट बी रिटर्न हियर, इट विल बी रिटर्न इन द आउटफ्लो, दिस इज अंडरस्टूड। Yes, sir. आउटफ्लो है ना वो रिटेंशन अमाउंट, कॉन्ट्रैक्टर के बिल में से काटा जा रहा है। ये 1000 करोड़ इधर भले ही दिख रहा है, लेकिन उसमें से 20 करोड़ काट रहा है वो, क्लाइंट इज डिडक्टिंग 20 करोड़ फ्रॉम ईच रनिंग बिल। तो ऑल्दो यू आर राइटिंग हियर, या तो इधर 980 लिखो, बट टू अवॉइड कंफ्यूजन व्हाट वी आर डूइंग, वी विल राइट इनफ्लो सेपरेटली एंड आउटफ्लो सेपरेटली। तो 1000 करोड़ में से 20 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर का काटा जा रहा है, तो ही इज रिसीविंग ओनली 980 करोड़, ठीक है। तो दैट 20 करोड़ विल बी पेड बैक टू द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर रेक्टिफाइंग द डिफेक्ट्स। तो ये जो सारा 20 करोड़ एनालिज्म आउटफ्लो टेबल आएगा उसमें एज इट इज आएगा, बट इनफ्लो में उसको पैसा जो मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, 2% इज रिटेंशन अमाउंट, बराबर, 2% इज रिटेंशन अमाउंट, एंड उसका 2% का इस
डिफेक्ट्स एस्टिमेटेड कितना है? डिफेक्ट्स एस्टिमेटेड इज 1.5%. इधर देखो, these are the defects estimated. So this is the defects which are estimated, that is 2.5%, and 2% is the uh, security which is taken, retention amount which is taken, whereas 1.5% is the estimated cost of defects. यानी इतना उम्मीद है कि इतना डिफेक्ट्स हो सकता है, देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ डिफेक्ट्स बीइंग 1.5%, है ना, एंड टोटल सिक्योरिटी इज हाउ मच? 2%. तो इफ द डिफेक्ट्स आर 1.5%, तो उसको बाद में कितना देगा वो? बाद में कितना अमाउंट वापस किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को? 0.5%. 0.5% ओनली विल बी रिटर्न. तो आपका जो 7th ईयर में है, 7th ईयर में ओनली 0.5% ऑफ 0.5% ऑफ ये वैल्यू आएगा आपका 5,000 करोड़. ओनली 0.5% विल बी पेड, बिकॉज बाकी का क्या हो गया इसको? 0.5% ऑफ ओनली 25 करोड़ विल बी रिटर्न. बाकी का जो 1.5% है, 75 करोड़ विल बी यूज्ड एज द defects liability rectification amount. Are you understanding this? ये समझा या नहीं समझा? मैं बोलो. समझा सर? अभिजीत को समझा, बाकी सब? Yes, sir. Yes, sir. उम्मीद को भी समझा, Yes, sir. सारे को? ओके. So once we do total, only carefully neglect this profit, otherwise profit का डबल. अभी इसमें भी प्रॉफिट गिन रहे हो, इसमें भी गिनोगे, तो you can just सम करो, just ऐड करो इसको. you can just add it at once. ऐसा भी कर सकते हैं, या सम करके उसको माइनस कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं. either add it in this way. ठीक है, C plus D plus E plus F plus H I J. You can just drag it. अपने बुक में बराबर से ऐड करो इसको. See if you are getting the same values. All of you just type your attendance in the chat box, because sometimes what happens ना, ये रिकॉर्डिंग में वो आता नहीं बराबर से. अटेंडेंस चैट बॉक्स में टाइप करो. हाँ, दिस इज देयर, दिस इज अंडरस्टूड. ये समझा क्या? ये Yes, सर sir. क्या इनफ्लो हो गया ना अभी? ये इनफ्लो का टोटल हो गया ना 7 साल का? ये इनफ्लो हो गया. इस पे और एक चीज बाकी है, एनपीवी निकालना. दैट आई विल टेल यू, देन यू कैन प्रोसीड फॉर आउटफ्लो. वंस यू अंडरस्टूड इनफ्लो, आई थिंक आउटफ्लो इज नॉट दैट डिफिकल्ट. इनफ्लो समझ में आया तो सिमिलरली आउटफ्लो इंस्टीट्यूट ना ओनली कहाँ क्या वैल्यू लिखना है वो बताना. आई विल डिस्कस दैट आल्सो. हाँ, सो एनपीवी एनपीवी समझ में. एनपीवी क्या है? एनपीवी इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू. मीन्स व्हाट विल डू इज वी विल डिस्काउंट इट. देखो, एनपीवी कंप्लीट कर प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए कभी भी ना, प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट, अभी देखो आज आई जस्ट गिव सम एग्जांपल्स एंड इट विल बी क्लियर. दिस इज द 0th ईयर, है ना. 0 ईयर में सपोज देर इज 1,000 रुपीज, ना. तो 1 ईयर में इफ देर इज अ 12%, अभी कितना दिया आपको? 12% दिया ना. कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना? 12%. so the discounting factor or cost of capital is 12%. so this उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज व्हाट? 1 + R
This divided by principal is equal to present value is equal to वैल्यू जो ये वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल जो फिगर्स है ना एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय वन वन प्लस आर आर इज द परसेंटेज वन प्लस किधर है प्लस आर रेज टू एन सिंपल वेरी सिंपल थिंग इट इज टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट वैल्यू और आज के दौर में एक्चुअल जो वैल्यू है उस साल में उसको छोड़े लेकिन आज के दौर में 100 रुपीज आफ्टर 10 ईयर व्हाट इट विल कॉस्ट व्हाट इट विल मीन टू मी टुडे दैट प्रेजेंट वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस आर रेज टू एन नाउ दिस इज वेरी सिंपल वन इज this one is constant r is what r is the डिस्काउंटिंग फैक्टर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपको 12% दिया है परसेंट मीन्स व्हाट परसेंट सेंट मतलब 100 तो इट इज नथिंग बट 12 डिवाइड बाय 100 सेंट जहाँ पे भी आता है ना परसेंट तो 12% जब बोला गया इट इज नथिंग बट व्हाट 12 डिवाइडेड बाय 100 दिस इज व्हाट ये दो जीरोज है ना परसेंट में दो जीरोज है इसका मतलब ये होता है दैट इज divided by 100 so 12 divided by 100 so this r के value is nothing but 12 divided by 100 in your case so it is 0.12 so this will become 1 plus 0.12 that is 1.12 raised to number of years so as number of years बढ़ते जाते हैं तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है बिकॉज दिस इज वन से ज्यादा है ना वन प्लस समथिंग है एंड रेस टू एन मतलब रेस टू वन इज विल बी स्मॉलर वैल्यू रेस टू टू विल बी बिगर वैल्यू रेस टू थ्री विल बी मोर बिगर वैल्यू रेस टू फोर विल बी मोर बिगर वैल्यू आर यू अंडरस्टैंडिंग सो एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस आर रेस टू एन सो इस केस में अपना एनपीवी कितना होगा इट इज फर्स्ट ईयर ना तो वन दिस विल बी व्हाट दिस है ना एक्चुअल वैल्यू कितना अपना सर टोटल का फर्स्ट वाली वैल्यू गलत है सर हाँ तो 2300 आ रहा है कितना है 2300 हाँ तो प्रॉफिट नहीं लेना ना वही बोल रहा हूँ आपको मैं टाइम सर प्रॉफिट में लेना ओके सर प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ मैं जब से वही बोल रहा हूँ आपको प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट ईयरली बिल्स ओनली मैंने इसमें जानबूझ के इधर लेकर बिकॉज आपको टैक्स कंपटीशन के लिए वो लगेगा प्रॉफिट लेना ही नहीं है ठीक है ऑलरेडी प्रॉफिट इज देयर इन द ईयरली बिल्स एनपीवी क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू में ऑल्दो इट इज लुकिंग 2200 बट इट विल बी लेसर बिकॉज दिस डिवाइडेड बाय वन कितना है वन प्लस 0.12 raised to n अभी n is nothing but your number of year is this year number simply enter मारो समझा नहीं समझा if you not understood you can ask me once again understood Yes, sir. for second year for excel it is very easy for me to just drag it but you need to solve it for each year separately ठीक है तो simply this value divided by 1 plus r will be same this will become 2 raised to 2 हो जाएगा फिर raised to 3 हो जाएगा raised to 4 हो जाएगा likewise it will change compute and just verify if it is proper is it verify it is it tallying with the figures which I have got here
Yes, sir. ओके, नाउ दिस इज ये समझा ना, एनपीवी समझ में आया ना? Yes, नाउ sir. सिमिलरली वी विल डू द कैश आउटफ्लो स्टेटमेंट। कैश इनफ्लो की तरह ही कैश आउटफ्लो करेंगे। यू नीड टू प्रिपेयर इट अनदर टेबल। मैं सिंपली फॉर ईजिंग माई वर्क इसको शॉर्टकट से करता हूँ, आप लोग लेकिन अच्छे से बनाओ बुक में। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, पहले समझो इसको, एंड यू कैन टेक इट डाउन। ठीक है, आउटफ्लो में क्या होगा, ये मोबिलाइजेशन बोल रहे हैं ना, इसका होगा रिटर्न ऑफ मोबिलाइजेशन। रिटर्न ऑफ, सारी चीज में रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस, रिटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एडवांस, रिटर्न ऑफ सिक्योर्ड एडवांस। अरे हाँ, एक चीज, ठीक है चलो, रिटर्न ऑफ सेकेंड ईयरली बिल्स का क्या है इसमें, क्या ईयरली बिल्स में वर्किंग एक्सपेंसेस आएगा। व्हाट इज वर्किंग एक्सपेंसेस, एनीबॉडी कैन टेल मी? हाँ सर, क्या पूछा? वर्किंग एक्सपेंसेस क्या है? देखो सिंपल है ना, ईयरली बिल आपको कितना पैसा मिल रहा है, उसमें 10% आपका प्रॉफिट है, तो जो भी बचेगा आपका एक्सपेंस है ना। वॉट एवर इज द एक्सपेंस, वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेंस, जो भी आपका फॉर सेटिंग अप द फॉर सेटिंग अप द साइट और वॉट एवर एक्सपेंसेस यू आर इनकरिंग, दैट इज योर एक्सपेंस। फॉर गिविंग सैलरी टू द एम्प्लॉइज, जो भी पैसा खर्चा हो रहा है, प्रॉफिट निकालने के बाद जो भी पैसा खर्चा हो रहा है, वर्किंग एक्सपेंस। सो ईयरली बिल अगर आपका एल जस्ट रिड्यूस रिमूव दिस वैल्यू, इट विल बिकम, तो ईयरली बिल का जो पैसा है, दैट माइनस प्रॉफिट विल बी द वर्किंग एक्सपेंसेस। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट दिस माइनस दिस। समझ रहे हो? नहीं समझा? बिल तो उतना ही मिला, लेकिन उसमें जो आपका जो खर्चा हुआ एज अ कॉन्ट्रैक्टर, वी आर वर्किंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स परस्पेक्टिव, तो कॉन्ट्रैक्टर का जो खर्चा हुआ वो प्रॉफिट निकालने के बाद ही होगा ना। नहीं समझा? समझा सर। समझा, गुड। प्रॉफिट की जगह आएगा आपका इनकम टैक्स, आईटी। आईटी क्या होगा, इट इज नथिंग बट, कितना परसेंट दिया, 30% दिया है ना, 30% दिया सर। 30%, आईटी इज 30% ऑफ दिस अमाउंट। अभी इसको मैं, these values are in crores, हाँ, कहीं तो आपको लिखना है इन रुपीज क्रोड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट इन करोड़ रुपीज। यूनिट्स का ध्यान रखो बराबर से। तो आईटी का भी हो गया वो। हाँ, बिफोर दैट, अच्छा अच्छा, विल सॉल्व दिस, जस्ट आई एम फिनिशिंग विद द हेड। तो दिस इज ऑल्सो रीपेमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसको मैं ये रेट में नहीं आएगा, बिकॉज व्हाट यू नीड टू कंसिडर दिस, प्रॉफिट भले ही रेट में है, लेकिन ये आईटी रेट में नहीं आएगा। क्यों? वाई नॉट? बिकॉज दिस मनी हैज टू बी गिवन टू द गवर्नमेंट, ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। भले ही आपको 100 करोड़ है, लेकिन 100 करोड़ का प्रॉफिट नहीं होता आपका, टैक्स निकालने के बाद 70 करोड़ का ही प्रॉफिट रहेगा आपको। समझ रहे हो? बिकॉज वॉट एवर इनकम, जितना भी आप कमाते हो उस पर टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। और भले ही आपको ऑन पेपर उस प्रोजेक्ट से इतना प्रॉफिट दिख रहा है, उतना मुनाफा दिख रहा है, बट इन एक्चुअली योर प्रॉफिट इज लेस बिकॉज सम अमाउंट इज गोइंग टू आईटी। It will be a part of this. No, at no instance this IT will be more than this profit. 25%, 30% ही होगा। तो ये आपको आई एम दिस इज इन रेड बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस, बट इसको व्हाइट मैंने रेड में नहीं रखा बिकॉज दिस नीड्स टू बी एडेड, दिस नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर एक्चुअल प्रॉफिट। फाइन, समझा ये? Yes, sir.
व्हाट अबाउट अदर साइमुद्दीन? यस सर। इसमें डाउट नहीं ना अभी, प्रॉफिट को क्यों नहीं ले रहे, इसको क्यों ले रहे? नो सर, नो डाउट। नो डाउट, ओके गुड। वंस यू अराइव्ड एट दिस, वर्किंग कैपिटल का भी, ये वर्किंग कैपिटल का रीपेमेंट होगा, पेमेंट सारा चीज जो है ना रीपेमेंट होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, रिलीज ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हो जाएगा, तो ये वापस करना है अभी कॉन्ट्रैक्टर को, रिलीज ऑफ रिटेंशन। नहीं नहीं सॉरी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी यहाँ पे लिया जाएगा, ये उल्टा हो गया है, देखो इधर। खाली फर्स्ट ईयर में आएगा सर हाँ हाँ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। हाँ, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फर्स्ट ईयर में आएगा, बराबर सेम अमाउंट आ जाएगा इधर, वही उधर वापस दिया जा रहा है। बट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आउटफ्लो में ये हेडिंग गलत हो गया सर, बोल रहा हूँ, यहाँ पे रिलीज ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आएगा। दिस इज परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, नहीं समझा? परफॉर्मेंस सिक्योरिटी पहले लिया जाएगा ना, बाद में रिलीज होगा। पहले रिलीज कैसे करोगे लेने से पहले? तो फर्स्ट ईयर में लिया जाएगा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, वैसे ही रिटेंशन अमाउंट भी ईयरली बिल्स में लिया जाएगा, यहाँ पे रिलीज और पे बैक ऑफ रिटेंशन अमाउंट, समझ रहे हैं? इनफ्लो में आपका जो ये लास्ट में आ रहा है, लास्ट ईयर में तो पे बैक हो गया, पहले लिया गया, ठीक है। सो विल कंप्यूट ऑल दिस। हाँ, पूछो डाउट। एक मिनट सर। सर वो एनपीवी निकला है ना, वहाँ पे वो फार्मूला में सर वो चेंज हो जाएगा, ईयर वहाँ पे 6 और 7 आया रहेगा, रेस टू हाँ, 6 ईयर ही है ना। 6 एंड रिलीज ऑफ पे बैक ऑफ रिटेंशन 7th ईयर में आएगा। हाँ, ओके ओके ओके। 7th ईयर में ना। देखो, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 5th ईयर के बाद 6th ईयर में रिलीज कर रहे हो, और यस यस रिटेंशन करेक्ट अमाउंट आफ्टर 7। करेक्ट। ओके फाइन, तो अभी फटाफट मुझे सर बताओ। फिर आउटफ्लो में भी रिटेंशन अमाउंट पहले आएगा ना आएगा फर्स्ट ईयर में? आएगा 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 आएगा, फर्स्ट में नहीं आएगा, ऐसा दिया है ना उसमें। रिटेंशन अमाउंट, रिटेंशन अमाउंट will be released is okay, retention amount is 2% which are deductible from each running bill। तो रनिंग बिल से मैनेज हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ना, रनिंग बिल की जो वैल्यू है उसका परसेंट होगा वो 2%, सो दिस इंटू 2%, ठीक है। तो रिटेंशन अमाउंट का 2% हो जाएगा, नहीं समझा? रिटेंशन अमाउंट विल बी 2% ऑफ द रनिंग बिल्स, ये बिल्स है ना उसका 2%। भले ही ये टोटल इज 100 करोड़ है ना, 100 करोड़, 10% ऑफ 5,000 करोड़ इज 100 करोड़, टोटल इज 100, बट इट विल नॉट बी टेकन एट वंस, जैसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एक साथ लिया जाता है ना, रिटेंशन अमाउंट एक साथ नहीं लिया जा रहा है, ये पार्ट पार्ट में, जैसे जैसे बिल क्लाइंट का दिया जाएगा, क्लाइंट देगा ना बिल, तो उसमें से 20-20 करोड़ काटेगा वो एज रिटेंशन अमाउंट, ताकि बाद में जब अपना ये हो जाए ना, बाद में जब काम खत्म हो जाए, जब काम खत्म हो जाए, तो दिस परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कैन बी रिलीज, दिस रिटेंशन अमाउंट कैन बी रिलीज आफ्टर द डिफेंस लाइबिलिटीज आर ओवर। समझ रहे हैं ये? हाँ सर। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दो, थोड़ा सा ट्रिकी है, और अदरवाइज इट इज, इफ वंस यू प्रैक्टिस दिस वंस और ट्वाइस ना, you need not refer again and again also, it is so, you can say this, प्रैक्टिस जरूरी है इसके लिए। ओके, नाउ बाकी के हेड्स हम लिख देते, रिटर्न ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस। नाउ जस्ट कम बैक टू द क्वेश्चन, रिटर्न ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस कब करना है? 6% तो फर्स्ट ईयर में ले रहा है वो, लेकिन रिटर्न कब करना है? विल बी डिडक्टेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, यानी 2% 2% 2%, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लिया जा रहा है। तो 2% ऑफ 5,000 करोड़ कितना हो जाएगा? 100 करोड़, बराबर ना? 2% ऑफ 5,000 करोड़ कितना है? 100 करोड़। ये फर्स्ट ईयर में 100 करोड़, सेकेंड ईयर में 100 करोड़, थर्ड ईयर में, तो यू शुड टैली दिस, यू शुड टैली दिस बोथ, मोबिलाइजेशन वर्क जितना लिया गया है और जितना रिटर्न कर रहे हैं सेम होना चाहिए।
मोबिलाइजेशन एडवांस जितना लिया गया है और जितना रिटर्न किया जा रहा है सेम होना चाहिए, बराबर। 300 करोड़ लिया है ना, तो 300 करोड़ ही वापस करेंगे, ये समझ रहा है? हाँ सर समझा। Yes, sir. गुड गुड। तो ये 300 करोड़ ही वापस जाएगा। वैसे सीए एडवांस भी है ना, 500 करोड़ लिया है, 500 करोड़ ही वापस जाएगा। हाँ, ईयर में डिफरेंस हो सकता है, कौन से ईयर, बिकॉज पहले ईयर में लिया है लेकिन बाद के ईयर में वापस जा रहा है। तो वापस जाओ, क्वेश्चन में कब रिटर्न कर रहे हैं हम सीए एडवांस? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। हाँ, फ्रॉम सेकंड ईयर सर। सेकेंड ईयर से। हाँ, सेकेंड ईयर से। तो ये 500 करोड़ का 2 इक्वल, तो 250 करोड़ हमको क्या करना है, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में रिटर्न करना है, बराबर ना? ठीक है। रिटर्न ऑफ सिक्योर्ड एडवांस, सिक्योर्ड एडवांस के लिए क्या है, देखो अलग क्लॉज है। सिक्योर्ड एडवांस तो हमने वो देखा था, ये सब उससे आया ना, सिक्योर्ड एडवांस प्रोपोर्शन टू ईयरली बिल। रिटर्न का क्या क्लॉज बता रहे हैं, सिक्योर्ड एडवांस इज अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन ऑफ ईयरली बिल्स, ठीक है। सिक्योर्ड एडवांस विल बी डिडक्टेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द रनिंग बिल स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड ईयर। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट लेने के टाइम पे प्रोपोर्शन टू द बिल्स नहीं लिया जा रहा है, लेने के टाइम पे मतलब वापस लेने के टाइम पे सब क्लाइंट से, क्लाइंट वापस ले रहा है रिटेंशन अमाउंट, सॉरी secured advance, so client is not taking back in proportion to the bill. While giving the secured advance, he gave in proportion to the yearly bills. But while taking it back from the contractor, he is taking it in 3 equal installments. So whatever is your retention amount, है ना, जो भी 50% ढाई ढाई हजार करोड़ है ना, 50% 2,500 करोड़, उसका 60% इज 1,500 करोड़। तो 1,500 करोड़ 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट वापस लिया जा रहा है ना। तो 1,500 करोड़ थर्ड ईयर में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 500 करोड़ लिया जाएगा हर ईयर में। 500 500 500। ओके, व्हाट यू शुड डू इज यू शुड वेरीफाई दिस वैल्यू, इट शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। ये 1,500 है तो वो भी 1,500 होना है। जस्ट जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज आई जस्ट ऐड दिस टेम्परली, आई जस्ट ऐड दिस टू सी इफ इट इज 1,500 करोड़ और होना ही चाहिए। ठीक है, तो दिस इज मैचिंग विद दिस, समझ रहे हो? ये जो सारे टेबल्स है ना, जो चीज लिया है जो रिटर्न करे उतने रिटर्न करोगे, अनलेस देर इज सम इनकम टैक्स कंपोनेंट इन्वॉल्व। अंडरस्टूड? यस सर। किसको नहीं समझा है बताओ मुझे। हाँ बोलो। दिस इज देयर, दिस इज अंडरस्टूड। Yes, sir. यस सर समझा। रिटर्न तक समझा। वर्किंग एक्सपेंस ऑलरेडी बता दिया, आईटी का हो गया। अच्छा, रीपेमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अभी देखो ये वर्किंग कैपिटल हमने रेज किया मार्केट से, मार्केट से पैसा उठाया, बराबर। तो वो पैसा हमको वापस देना है, और कब, उतना ही पैसा वापस नहीं देना ना हमको, उसमें कुछ इंटरेस्ट भी देना है। तो इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है ना। तो ये जो इनकम टैक्स इज चार्ज एट 30%, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू बी रेज एट 10%, तो वो हमने 10% वगैरह डाला है, लेकिन इंटरेस्ट इज गिवन एज 10%। तो ये जो हमारा 10% है, 500 करोड़ था इधर, ये टोटल इसका करोगे तो 500 करोड़ है। तो 500 करोड़ पे 10% इज इनकम टैक्स, 50 करोड़ इज द इनकम टैक्स विच इज, सॉरी, इंटरेस्ट विच इज चार्ज। तो टोटल हाउ मच वी हैव टू पे बैक, वी हैव टू पे 500 प्लस 50। 500 ये जो हमने इधर लिया है, दिस दिस इज 500, दिस 500 प्लस 50 वी नीड टू पे बैक, है ना। यानी 550 हमको पे बैक करना है। कब पे बैक करना है? रिपेमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज टू बी कंसिडर्ड इन 6th एंड 7th ईयर टुगेदर विद सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट बोला है। इन एक्चुअल इट इज नॉट सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या होता है,
पहले साल आप ले रहे हो और अब बोल रहे हो मैं बाद में 5 साल बाद दूंगा, तो इतने 10%, ऐसा नहीं होता है। तो 10% पे अगेन ये 100 का 110 हो जाएगा, फिर 110 का 121 हो जाएगा, फिर अगेन 132 हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस प्रिंसिपल विल नॉट रिमेन सेम इन फिजिक्स प्रैक्टिकली, जो मैं एक्चुअल में जो फील्ड पे होता है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट बुलाते हैं। ठीक है, समझ रहा है ये? यस सर। सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी सिंपल, है ना? तो ये 550 जो है, ये 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिपे बैक करना है, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन में। तो 550 का आधा है, 275 रिपेमेंट करेंगे हम सिक्स एंड सेवन में। 275 7। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? रिटेंशन और ऑल आपने किया ही हो, इसका बाद में आप सम कर दो। ठीक है, जस्ट वेरीफाई इफ यू आर गेटिंग द वैल्यूज। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, समझा ये? न्यूमेरिकल समझ में आया? लास्ट थिंग व्हाट विल डू ना, एक लास्ट थिंग सुन लो, फिर यू कैन ज्वाइन द ओआर क्लास, आरएम क्लास, जो भी क्लास है आपका। ग्राफिकली इसको बताना है। ग्राफिकली यू विल शो दीज वैल्यूज, नॉट एनपीवी वैल्यूज। एनपीवी का जो टोटल है, इधर टोटल करो आउटफ्लो का। जस्ट 1 मिनट विल बी रिक्वायर्ड, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, खत्म हो जाएगा फिर। और ये इनफ्लो का टोटल, ये आउटफ्लो का टोटल। तो आउटफ्लो का एनपीवी शुड बी लेसर देन इनफ्लो का एनपीवी। इनफ्लो पैसा ज्यादा अंदर आना चाहिए ना। दिस इज 5974 एंड दिस इज 5 is what 585484. So this means it is positive, that means the contractor will make profit from the project। इतना प्रॉफिट 491 करोड़ आज के टाइम का, उसका वैल्यू प्रॉफिट का इतना हो जाएगा। ठीक है, तो दिस न्यूमेरिकल आई विल शेयर विथ यू, यू गो थ्रू इट थरली। कुछ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। ओनली थिंग इट इज लेंदी, थोड़ा लेंदी है। एग्जाम में इसको टाइम मैनेज करके आपको करना होगा। फाइन, so this I'll share with you on the group। कुछ डाउट है तो कैन आस्क मी आफ्टरवर्ड्स आल्सो, नो इशू। अब थोड़ा इसको गो थ्रू हो जाओ अच्छे से, सॉल्व भी अच्छे से करो। एंड 14 मार्क्स का न्यूमेरिकल है जनरली। 14 मार्क्स, 12 टू 14 मार्क्स का आता ही आता है, डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यूज विच आर गिवन। एक चीज और एक ये देखनी है कि कोई भी ईयर में वेदर दी इनफ्लो इज नॉट मोर देन, सॉरी आउटफ्लो इज नॉट मोर देन इनफ्लो। तो फर्स्ट ईयर में देखो आउट इनफ्लो इज मोर, तो दिस गुड। सेकेंड ईयर में भी इनफ्लो इज मोर, थर्ड ईयर में आउटफ्लो इज मोर बट स्लाइटली मोर, सो दिस फंड्स कैन बी डाइवर्टेड हियर। ठीक है, फोर्थ ईयर में भी आउटफ्लो स्लाइटली मोर, दैट इज फाइन। तो फर्स्ट 2 years में देयर इज नो प्रॉब्लम, बट नेक्स्ट 3 years में देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ इनफ्लो इफ द कॉन्ट्रैक्टर डजंट, ये बचा के इधर बचा के नहीं रखता वो पैसा, तो उधर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आया ये? तो नेट प्रॉफिट 491 है ना? नेट प्रेजेंट वैल्यू 491 करोड़ है। So this I will share with you, so you can refer this also, and I will also give you some values। assignment में भी I will give you values, changing the values है ना।
आपके रोल नंबर के हिसाब से, तो यू हैव गुड प्रैक्टिस ऑफ दैट सर। So you can, those who have entered the attendance can leave this. I'll share you on the group and also I'll upload on the classroom also. Okay. Immediately join करो, ACT lecture immediately join करो। Thank you, sir. Welcome.